Good morning, viewers. Welcome back to Cook Speaks once more. It is the 2nd of January 2022. First of all, a very happy new year to all of you. I always pray to the Almighty to fill in your blank book of 2022 with a lot of peace, health, and absolute happiness, especially after these 2 years which have gone by. Well, it's very obvious, I'm standing in a billiards room, in a snooker room, and the gentleman who's playing here is Mr. Kamal Chawla. Hello. Hi. And it's been a craze in Bhopal. We just concluded with the National Snooker and the Billiards Championship in Bhopal. So suddenly the craze for billiards and snooker shot up, and this gentleman who's standing here incidentally was ex-world number 2 way back in the year 2017 in snooker, and I'm standing here right in his academy. Now, coming to the background of billiards and snooker, maybe say about after 11 years of independence, the country gave the first world champion from India. The name of the gentleman was Wilson Jones, and he became the world champion way back in 1958. And then the speculation started, because Wilson Jones was an Englishman based at Pune. And then the speculation started, who will fill the void now? Wilson Jones retired. Immediately after Wilson Jones, we had Michael Ferreira from Bombay. He was an amateur world champion 3 times. We had some classy players, Arvind Saroor, and of course then we had the golden era. The golden era starting from Geet Sethi, that is in the 90s, a 9-time world champion. Then it continued with someone like Pankaj Advani, 24 times a world champion. I seriously feel majority of the viewers, majority of the sports lovers in the country, do you know you have a player who has got 24 world titles? I think it should be a record in India. And see his decorations. He is a Arjuna Awardee. He is a Padma Shri. He is a Padma Bhushan. He is a Khel Ratna. I think among all these sportsmen, one of the few decorated more than Pankaj Advani should be Sachin Tendulkar. Because Sachin Tendulkar, immediately after his retirement, got the Bharat Ratna. Of course, there was a lot of request, जिसे कहते हैं आवाम की बहुत एक दरखास्त थी कि साहब ये खेल रत्न को शेयर करना चाहिए था jointly, which at times feels logical, of course, not taking any credit out of Sachin Tendulkar's marvelous innings as a cricketer in India. But lot many people thought another legend should have jointly got, and that was Major Dhyan Chand for hockey. Anyway, these are speculations, these are requests of the public. So I'm here right now with Mr. Kamal Chawla. I'll start my discussion with Kamal Chawla on his life, on the recently concluded nationals here, his past. He's a very close friend of Geet Sethi and Pankaj Advani. Little sentences about the 2 legends. And we'll continue, then we'll take you to the trophy house where Kamal has got a massive collection of trophies. So Kamal, thank you so much for permitting us here to your beautiful academy. So before we start with your career, and I said little words about Pankaj Advani and of course Geet Sethi. Tell us something about this beautiful academy which you have opened up. Yeah. Which year you started? How many students you have? I just started 2 years back because of Corona, it's all got delayed. Actually, I already had 1 table. Okay. I want कि जो मैं अभी खेल के बच्चों को सिखा सकता हूँ, because I can do the same shot which I want to tell the students. Correct. So this is the right time I should do it. Otherwise क्या होता है कि जैसे मैं भी बीच में 2-4 कोचेस को देखा मैंने. They were telling verbally, but they were unable to tell practice. Reality में table के ऊपर. So I thought this is the right time, and it is only one thing I want to do. What I have earned from the game, I have to give it back. Very nice. That's a great spirit यार. काफी बहुत अच्छी बात है. अभी कितने बच्चे हैं कमल आपके पास? अभी कम हैं. अभी यहाँ पे 10 बच्चे करीबन हैं. और एमपी गवर्नमेंट में जो ऑनरेबल मिनिस्टर है यशोधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने भी मेरी बात मान के वहाँ टीटी स्टेडियम में भी एक एकेडमी है जी, उसमें भी हमारे करीबन 14 बच्चे हैं. बेसिकली जो गर्ल्स एकेडमी है अंडर 21, तो उसमें हमारे 14 बच्चे. बहुत यार, इट्स वेरी गुड थिंग कमल. आपका जो बैकग्राउंड रहा, आपके पिताजी जो थे बीएचएल में थे और
एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार था आपका। मैं ये दर्शकों को एक चीज बता दूं साहब, ये सिंपल आदमी है, बट बिलियर्ड्स एंड स्नूकर वाज अनहर्ड लीव अलोन भोपाल इन मध्य प्रदेश। यू नो, जिसे कहते हैं करिश्मा, जिसे कहते हैं फ्लैम्बॉयंस, ये जेंटलमैन लेके आया। ये पहला आदमी है मध्य प्रदेश से जो इंटरनेशनल स्तर पे, ही वाज वर्ल्ड नंबर 2 वे बैक इन 2017। So Kamal, I really appreciate, I'm really give a lot of credit to you to really make this game of snooker and billiards so popular in Madhya Pradesh. आपके होते हुए आपके शागिर्दों में से कोई आगे बढ़ा? हाँ, काफी प्लेयर्स हैं। एक आध कोई आपका भी बच्चे का नाम बताइए। काफी प्लेयर्स हैं। एक बच्चा है, बट अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ही इज नॉट adoring me now. अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता? No, but see, अगर कोई बच्चा आप वापस आपको रिगार्ड्स ना दे तो उस बच्चे का नाम लेने का फायदा नहीं। नो डाउट ही हैज परफॉर्म्ड वेल एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। वेरी मैंने एक चीज देखी कमल, आपके केसी स्नूकर में बैठे हुए, मेरी थोड़ी सी वार्तालाप हुई है कमल से, तो काफी शर्मीला इंट्रोवर्ट है, इसके दिल में काफी गुबार है, इसके दिल में काफी कुछ नाराजगी, लेकिन निकालता नहीं है। तो कुछ ऐसा जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप चॉइस इज योर्स कमल। Certain things must come to the public. If you feel at any time, you know, that it has to be revealed, it is good for the betterment of the game. Wherever you feel necessary. Okay. Now coming to this recently concluded nationals, which was held in Bhopal. How were the arrangements? Yeah, it was good. It was very great of the Sage University and especially Sanjeev Agarwal ji and their daughters. Okay. They brought this game into limelight in Bhopal. Very good, yeah. Because every time I was in Bhopal for the last 25 years, I've started the game, but nobody come forward to support this game. So I was very happy to see them, and they gave all the facilities they can towards the players at the stage. मेरे ख्याल से ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है कमल, इसकी लोग ज्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं करते। पॉपुलैरिटी नहीं वाला ये गेम तो इंडिया से पैदाइश हुआ है, जो 1878 में जो जबलपुर, जब उसका नाम जबलपुर था, बिल्कुल, तब वहां पे ये गेम स्टार्ट हुआ। 1906 में इसको रजिस्टर्ड किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, इसके मापदंड क्लियर किए गए, और वो तभी से इसकी 1912 और 20 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट वहीं से इसकी चैंपियनशिप भी शुरू हुई। और अरविंद सरूर जी थे जिन्होंने स्नूकर में, जो पंकज जी के भी कोच है, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया स्नूकर में। यासीन मर्चेंट जी हैं जो एक नाम है, आलोक कुमार जी हैं एक नाम है। ये स्नूकर में, आई एम बेसिकली अ स्नूकर प्लेयर। आई स्टार्टेड विद बिलियर्ड्स जी इन बीएचएल सीनियर क्लब। ये किस वर्ष की, which year was that? 1996. अरे वाह, long time. So actually my brother Gagan Chawla, he used to play in weekends. Okay. He was doing his engineering from SATI Vidisha. Okay. So he used to, and BHL club, you know, there are movies on Saturday night. So I was there. So I was searching for my brother to eat some samosa to take some money from him. So I went inside. His friend told that he is inside the billiard room. So I went. मैंने धीरे से झाँका तो देखा कि बस एक ग्रीन लाइट है, जैसे ग्रीन बेस है, लाइट इज ओनली ऑन द टेबल एंड ही इज प्लेइंग। तो मैं गया, मैंने कहा ये क्या है, मैं खड़ा रहा पहले 10 मिनट। मैंने पूछा भैया ये क्या है, बोले ये बिलियर्ड्स है। मैंने अच्छा, मैं फिर धीरे शर्माते हुए बोला कि भाई क्या मैं एक शॉट, बोले हाँ। तो उन्होंने जो खड़े होने का तरीका, जो स्टांस है, वो मुझे मेरे घर से ही मिला। क्या बात। जैसे हम लोग रैकेट गेम में बोलते हैं, जो ग्रिप होता है वो आपका पहला कदम होता है। बिलियर्ड्स में कहते हैं जो स्टांस होता है वो पहला कदम होता है। तो पहला कदम भाई साहब ने सिखा दिया। क्या बात। हम तो कहते हैं फिर विरासत में मिला। उसके बाद फिर वो गेम मैं वहां से खेलता गया और 1 साल बाद ही मैं स्टेट नंबर 4 हुआ। क्या बात। वो एक मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। ये जूनियर्स में थे या सीनियर्स? जूनियर्स। लेकिन मैं जब पहला नेशनल गया उसके अगले साल, तो मैं पहले राउंड हार गया। उसके बाद दूसरे साल फिर पहला राउंड हार गया। फिर मेरे को समझ में आया भाई स्टेट जीतना और यहाँ पे पेपर में फोटो आ जाता है, भाई अपने मतलब मेंढक हैं हम, अपने यहाँ जीत गए, खुश। मैंने बाहर का रुख किया, मैं बॉम्बे गया, बैंगलोर गया, इधर उधर मैंने जो भी ओपन चैंपियनशिप होती थी वो खेल, हारा, लिखना शुरू किया और उन पे रियाज किया। और उसके बाद जो है मैं चौथे साल में इंडिया नंबर 4। क्या बात। देखो, दिस इज द पॉइंट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन कमल। आपने बिलियर्ड्स को उदाहरण दिया, मैं आपको टेनिस का उदाहरण देता हूँ, मैं आपको बैडमिंटन का उदाहरण देता हूँ, मैं आपको टीटी का उदाहरण देता हूँ।
इतने अच्छे प्लेयर्स आए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एकल रहे, टॉप में रहे, खत्म, रिटायर हो गए। जैसे आपने राइटफुली बोला, पेपर में फोटो आ गई, जयराम जी। अगर यही प्लेयर्स एक अच्छे स्तर पे एक ऑर्गेनाइज या प्रोफेशनल कोचिंग लेते, जैसे आपने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर में या एक भारत के स्तर में डेंट मारा, हो सकता है ये बच्चे भी डेंट मार जाते। So it's a very rightful suggestion that must go out of Bhopal. You have attained everything in the state. Now what is the next? What is the next? Okay. Now this was your entry into the nationals, Kamal. Then we come to your international. How did you start from the national going into the international? Were you selected from the Indian team? I got the wildcard entry in 2000 for the juniors. 2000. Which country? It was in India. It was. Okay. That's why I got the wildcard entry. Okay. But after that, it took me around 8 years to qualify for India. My God, why is that? It is same कि मैं बॉम्बे पोस्टेड हो गया था रेलवेज में। अच्छा, आपका एक पोस्टिंग का बता दें कि आप कमल जो है he is working with the railways. So when did you get I joined railways in 2002. Okay. So I was in Bombay. I struggled there for 3 years, but Bombay was not my cup of tea. And वहाँ पे बस मैं वो लोकल के बीच में कहीं वो जो घूम सा गया था कि मुझे को वो लोकल पकड़ के वापस दहिसर पहुँचना और मुझे वही लोकल पकड़ के सुबह ऑफिस अटेंड करना। तो मैं कहीं खो गया था मुझे, और मेरे को भी समझ में आ गया कि दैट बॉम्बे इज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज इफ यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द charm of Bombay or the class of Bombay is more than me. Correct. So I agreed on it कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है। 3 साल स्ट्रगल किया, फिर मैं वापस आ गया भोपाल वापस आ गया। I tried my all here and there. I was without pay for some time, and then I just keep on playing. In 2008, I played the World Championship. क्या बात। Qualified. कहाँ पे खेले World Championship? Hyderabad. Okay. And 2008 national I qualified, and then 2009 I played the World Championship Hyderabad. And it was a good fortune for me that I resulted as in top 8 of the world. क्या बात। Yeah. पहला, this was your first decade in the World Championship. Yeah, Fabulous. Senior international. Fabulous. So then again it took 2 years. Then it was 2011. Then I asked Honorable CM साहब कि मेरे को ट्रेनिंग जो करनी है जी, मुझे उसके लिए इंग्लैंड जाना है, और मेरे पास पैसा चाहिए, मेरे पास इतना फंड्स नहीं, तो वो उस बात को समझ गए। आप डायरेक्टली गए? डायरेक्टली, और उन्होंने मुझे उसी दिन मेरा सैंक्शन कर दिया। अगले 3 दिन बाद मेरा वीजा इंटरव्यू हुआ और मैं यूके चला। क्या बात। तो वहां से मैं सीधा बैंगलोर, जो फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप बैंगलोर में थी, इंडिया ही होस्ट कर रहा था, मैं सीधा यूके से भोपाल होता हुआ 1 दिन का मतलब बस कपड़े लेके सीधा बैंगलोर पहुंचा, और मैं वहां पे वर्ल्ड नंबर 3। क्या बात। और वो एक बहुत बड़ा जो ब्रेक था अपनी लाइफ में। वो मेरा, ये किस वर्ष की बात है? It was I can tell you the date, 3rd December 2011. क्या बात। देखो achievements are always in memory, you know. Okay, so अच्छा, ये क्या कभी speculation रहा? क्योंकि देखिए billiards is not a very cheap game. It's an expensive game. जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, जैसे UAQ भी है, तो ये इनकी रिपेयर के लिए ये विदेश जाती है, या अच्छे कारीगर नहीं मिलते, या अच्छा मटेरियल नहीं मिलता, ये जो टेबल का क्लॉथ है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, तो इट्स एक्सपेंसिव, मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव। कभी जीवन में पैसे के कारण निराशा हुई, कभी लगा कि यार मैं गेम छोड़ दूं? काफी। क्या बात। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ जब आपकी ट्रॉफीज के बारे में चलूंगा कमल, तब मैं आपके स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में पूछूंगा, और मैंने कमल से दरखास्त भी करी है कि पंकज अडवाणी जी से भी इसके बारे में जरूर एक छोटा सा बाइट लेंगे। दैट इज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट्समैन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स बॉडीज बाय स्पोर्ट्समैन, because this is one issue which I feel you are a little vocal about it, and I totally support you. Not only me, all the sports lovers of the country would support that cause. तो ऐसे स्टेज पे जब आपका इतना अच्छा कैरियर चालू हुआ था, इतने उभर गए थे आप, इतना बढ़िया खेल रहे थे, क्या स्पोर्ट्स आपकी फेडरेशन ने आपको सपोर्ट नहीं किया? थोड़ा बहुत जितना वो कर सकते थे, बिकॉज ये गेम देखिए, गेम को जब तक हम, जैसे बैडमिंटन हुआ, कबड्डी हुआ, उसको उन्होंने प्रोफेशनल बना दिया। जब तक हमारे, जैसे यूके में हमारा सबसे बड़ा गेम स्नूकर इज द हाईएस्ट पेड गेम इन यूके। ओके, प्रोफेशनल सर्किट चलता है, और पंकज जी भी वहां होके आए हैं। he has made a stand there. इतना अच्छा खेले हैं, लेकिन जब तक हमारी फेडरेशन अभी ये नहीं करेगी, तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा, और जब तक मॉनिटरी स्टैंड नहीं आएगा, हमारा गेम आगे बढ़ेगा, वो कहाँ से हमारे घर?
मतलब मींस की प्रॉब्लम है, मींस की प्रॉब्लम। उनके पास अपने एजेंडेस हैं, तो उसमें कोई वो Okay, we want, you're suggesting that the billiards or the snooker league, like it's in cricket, tennis or in kabaddi or in hockey even. So make it a professional field, so money comes to the federation, and then the federation can help people or players who are needy about it. Okay. Now, we're slowly advancing to your career. अब आपने इंटरनेशनल में कदम रखा और स्टेट में जैसे आपने बताया कि आपको एक महारत हासिल हो गई थी, तो आप आए, आप actually I in 2002 when I joined railways, in 2002 I joined railways, and next year I started playing from Indian Railways. Okay. Because that was a bigger platform. Okay. Okay. And I know कि मेरे को अगर नेशनल जीतना है तो इंडियन रेलवेज तो जीतना ही पड़ेगा। Correct. क्योंकि हमारे एमपी स्टेट का, आई एम नॉट वो पुलिंग बैक, बट हमारे एमपी स्टेट का स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, और इसको बढ़ाने के लिए कभी कोई, मैं यही तो आपकी तारीफ करी थी शुरू में, कम नहीं है एक्चुअली, लोगों को ज्ञान नहीं था इस चीज के बारे में, आप समझिए। और अभी भी मैं वो चीज देखता हूँ कि जब मैं भोपाल में हूँ या एमपी में हूँ, और हमारी मध्य प्रदेश की एक आदत है, तो भोपाल की भी एक आदत है कि वो जो बाहर का वो जो ढोल बज रहा है उसका साउंड बहुत अच्छा है, लोकल का नहीं, लोकल का बिल्कुल। घर की उनकी दाल, घर की कोई बात नहीं, अब उनको भी टाइम लग रहा है सीखने में। जब मैं यहाँ पर, तो ये कई सारी, मतलब मेरे को कभी-कभी इनसे हंसी भी आता है, फील पिटी ऑन। नहीं बट ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो वाजिब है, आप व्हाट यू आर सेइंग आई टोटली एग्री, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स लवर वुड एग्री विद यू कि यार घर पे बैठा जो इंसान है उसकी तो मदद करो बेचारे की, वो कहाँ जा रहा है। नहीं, आपके जो मैंने शुरू में कहा था इस टॉक शो पे कि आप जब वर्ल्ड नंबर 2 बने और आप जब एयरपोर्ट पे लैंड हुए और आपका जब स्वागत हुआ और लोगों ने पेपर में पढ़ा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का स्नूकर की तरफ रुझान बढ़ा जी। ये तो मैं आपको क्रेडिट देता हूँ साहब। रुझान तो सर मैं नहीं, 17 से नहीं, ये 2011 से बढ़ा। ओके। 11 में जो मेडल जो वर्ल्ड नंबर 3 स्नूकर में आया है, दैट वाज द थर्ड मेडल इन लास्ट और एवर वी हैड। फर्स्ट वन विद अपना ओम अग्रवाल जी, उसके बाद पंकज जी, और उसका नाम, क्योंकि ब्रो वो जो वहां तक आना एक डिफिकल्ट है, हर बार कोई ना कोई थे, सब थे लेकिन क्वार्टर फाइनल। आई वाज द थर्ड इंडियन टू रीच दैट। ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। अच्छा, उसके बाद आपका जो सफर आगे बढ़ा जिसमें आपको वाकई में खुद ही बड़ा खुशनसीबी हुई, और हम दर्शकों को उसका बाइट भी दिखाएंगे, कमल से शेयर करेंगे, जब आप सिल्वर जीते वर्ल्ड चैंपियनशिप में और आप हारे, दुख भी रहा आपको उस चीज का, वो किस्सा सुनाइए, वो कहाँ का है, कहाँ पे आप वर्ल्ड नंबर 2 बने? वो इजिप्ट का है, 6 रेड जो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ स्नूकर होता है जी, बहुत डाइसी फॉर्मेट है, और क्योंकि उसमें टोटल आपको 18 बॉल स्पॉट करना है, 6 रेड 6 कलर्स हैं। ऐसे फास्ट गेम में आप लक और मेहनत को या स्किल को कितना वेटेज देते हैं? देखिए, मेरा जो इसको नापन देने का वो है, वो बिलियर्ड्स को मैं बोलता हूँ 99% स्किल 1% लक। स्नूकर को मैं बोलता हूँ 90% स्किल एंड 10% लक, एंड 6 रेड को मैं बोलता हूँ 70% स्किल एंड 30% लक। बिकॉज 6 रेड क्या है, आपने एक ब्रेक मारा जी, आप ब्रेक मारते हैं, आप 35 से 40 का ब्रेक मारते हैं, आप 5 रेड ले लेते हैं जी, उसके बाद भी आप गेम हार सकते हैं। करेक्ट। जबकि स्नूकर में क्या होता है कि आप अगर 50-60 मार दोगे, वो सामने वाला गेम के ऑलमोस्ट आप उसको बाहर कर देते हैं जी, अबाउट 75 जी। तो इसमें एक ये बड़ा वो कि कभी भी वापस आ सकता है, तो दैट इज द मोस्ट डाइसीएस्ट, so therefore you attribute luck factor to nearly about 30%. yeah, that is my चलिए, तो फिर आप फाइनल्स में किनसे हारे? इजिप्ट गए आप? मैं पहले तो मैं क्वार्टर फाइनल में मैं ओचीवाई से जीता जी, और ये ओचीवाई कहाँ के? ओचीवाई हांगकांग, उससे मैं 3 महीने पहले एशियन में उनसे हारा। ओके। उसके बाद मेरा मैच था पाकिस्तान से जी, और पाकिस्तान वाला जो है वो पंकज को मार के आया। अरे वाह। एंड पंकज वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो मेरे को हमारे इंडिया टीम के लिए सैड वो था। और बाबर वसीम, पाकिस्तान के जो बाबर वसीम थे जी, उनसे मैं लास्ट ईयर का जो एशियन था उसमें मैं हारा था। अरे वाह। तो वो उनके साथ मेरा सेमीफाइनल था, वो मैं बहुत अच्छा खेला। तो आपको मेंटल ब्लॉकेज तो गजब का होगा साहब, वही शख्स ने पंकज को हराया
और उसी शख्स ने 1 साल पहले आपको हराया था। हाँ, और उससे पहले क्वार्टर फाइनल में भी ऊंचीवाई से हारा था। ऊंचीवाई से उसको भी हराया। तो मेरा वो अच्छा चल रहा था। उसके बाद जो मेरा मैच फाइनल डेरेन मॉर्गन से हुआ जी, ये कहाँ के थे, किस कंट्री के? ये वेल्स के हैं। अच्छा, वेल्स। प्रोफेशनल में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। Okay. ये बहुत पॉलिश्ड प्लेयर है। व्हाट्स हिज नेम? डेरेन मॉर्गन। डेरेन मॉर्गन। ओके। ये अपने टाइम के वर्ल्ड नंबर 2 रहे हैं प्रोफेशनल में। बड़ी चीज है, बड़ी चीज। उनसे मेरा मैच था। अच्छा, मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था, आपसे उम्र में भी काफी थे। हाँ, वो उम्र में काफी है। वो मेरे ख्याल से he might be 54, but in this game you have to No, I'm just, I know age is just for knowledge of the audience, you have to maintain your health. Yeah. And experience counts more. Exactly. Than the age. Yeah. उनके साथ मैं ट्रेलिंग था 4-2. I did it 4 all. जी। 4 all पे एक मैंने शॉट मारा और ब्लैक के पास रेड था और वो रेड में पंच करने गया मैं। जी। और हम लोग बोलते हैं वो जो पंच या स्टन बोलते हैं, वो स्टन प्रॉपर्ली क्लिक नहीं हुआ। And I missed the shot. Oh, it was a very easy shot. It's rated as a simple shot. Yeah, it was a stun, मतलब वो स्टन जो है वो स्टन पकड़ा नहीं बॉल। मेरा मतलब जो अगर हिंदी में समझाऊं मैं, तो वो शॉट वहां से मिस हुआ and it was 6-4 against me and I lost the final. Close, but close. Yeah. And I think you must be always regretting missing that sitter. That was a nightmare for me for many nights. Okay. अच्छा, दूसरा मैं जो एक जैसे मैंने जिक्र किया फेडरेशन के बारे में और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अपन आपके जो ट्रॉफी रूम में वहां जाके बात करेंगे। जैसे मैंने टॉक शो की शुरुआत में किया, इत्तेफाकन मैं आपको ये बता दूं कि कमल चावला जी इज बीन अवॉर्डेड द विक्रम अवार्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड जैसे मैंने चालू किया था, व्हाट medals and decorations do Keith Sethi and Pankaj Advani have got? I'll seriously tell you. How many people in India would be knowing that? If you talk about a hockey, even a cricket player, plenty people know about it. But what? Yeah, Khelna, Arjuna, Padma Shri, Padma. It's a massive thing. And the 24 times world record holder is not a joke. Even for someone like Kamal, with whom I'm sitting, being world number 2 and world number 3, not a joke. It's a very big thing. So anyway, Kamal, now the next stepping. What are your plans for the international scene now? See, this year it was unfortunate for me that because of the corona. No, during the quarterfinals when I was playing in the national snooker, I got sick. Okay. I have a G6PD problem. Okay. So something I ate, so it gave me a cramp in the stomach. What is this problem? Can you explain? G6PD. I am not allowed to eat beans and proteins and many things. Okay. So my red blood cells doesn't develop at the same rate what you. Okay. So that gives you a little bit of weakness at times. Yeah, weakness. और उसको जो cramp आया stomach में, तो after the pre-quarter final, I immediately rushed to the hospital. Okay. I was admitted. Which place was that? Same in Bhopal. अच्छा ये जो अभी हुआ. Okay. तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को एडमिट हो गया, उन्होंने मेरे को जो भी मेडिकेशन दिया, मैं रात को 3 बजे मैंने बोला मुझे जाना है, because I was unable to sleep and in the morning 10 o'clock I have to play the match. So I went on my own risk और मैं सुबह 10 बजे मैच जीता। अरे वाह। I came to the semi-final. But वो जो रात का थकान था और जो मेंटल फटीग था और बीमारी का जो भी था, वो मेरे को पूरा ही खत्म कर दिया। और शाम को जो फाइनल सेमीफाइनल हुआ, I lost in straight round 5-0. Not in rhythm at all. So now one good thing about our federation is that top 8 of India will again play the India camp. Okay. And then they will be selected as 1, 2, 3 for the international. So you would come on. So I am in top 4. So I hope I will be getting the Asian and the world this time. Okay. That's great. So and in 2019 also, just before the COVID, in June 19, I won the Asian bronze in 600. Okay. And a world team's bronze in Myanmar in September 2019. So I have 2 medals in hand in 2019. जी। ये आपका जिक्र करेंगे सर, आपने एशिया में 4 जीते, आपने वर्ल्ड में 4 जीते, आपकी जो ट्रॉफीज पीछे रहेंगी तब आप इसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी अपकमिंग प्लेयर्स ना, आप तो है खैर एमपी में एक, आई थिंक आई रेट यू वेरी हाई इन एमपी, देयर इज नो क्वेश्चन। एनी अपकमिंग यंगस्टर्स यू फील वो कमिंग अप वेल? Yeah, there is one girl called Ami Kamani and there is one more Ishika Shah. Great. These 2 girls are doing phenomenally good for Madhya Pradesh. They are from Bhopal? They are from Indore. अरे वाह, क्या इंदौर में क्या सेटअप रहता है कमल? अच्छा है इंदौर में अच्छा है because there are club houses are there like
यशवंत क्लब इज देयर, रेसिडेंसी क्लब इज जी, देयर। जी। तो क्लब हाउस क्लब्स में टेबल्स हैं जी। तो प्लेयर को वो उनको सीनियर प्लेयर जो खेलते रहते हैं उनको देख के और नॉलेज मिलता है। करेक्ट। आपके अलावा भोपाल में कोई एकेडमी और है जो बिलियर्ड? बस यही जो है, बाकी पार्लर्स हैं। नहीं, और वो जो तो हमारा पार्लर्स तो छोड़ दीजिए। रीजनल सीनियर क्लब था एक टाइम, वो भी खत्म है। अरगर क्लब में एक टेबल है। अरगर में दो टेबल, दो अरगर टेबल। क्लब इज डूइंग वेल, बट वहां पे क्या है, बिलियर्ड्स में मोर देयर आर सीनियर प्लेयर्स। अरगर क्लब का आपको छोटा सा जोक सुनाता हूँ। एक ब्यूरोक्रेट है, नाम तो लूंगा नहीं, कैमरा है, वो 20 साल के बाद या 15 साल के बाद तशरीफ लाए और उन्होंने ये बोला कि 20 साल पहले मैं यंगेस्ट प्लेयर था, आज मैं यंगेस्ट प्लेयर हूँ बिलियर्ड्स में। तो इजाफा नहीं हुआ, यंगस्टर्स नहीं आया। यू राइटली सेड। सो वो तो खैर एक वो तो क्लब टेबल हो गया। आप जैसे यंगस्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैडम ने, जो हमारी माननीय मंत्री है स्पोर्ट्स की, उन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया वहां पे आने के लिए। इसके अलावा एनी अदर आउटलेट्स इन भोपाल? नो नो, तो यू आर ओके। अभी हम कमल को लेके चल रहे हैं ऊपर, इनकी जो ट्रॉफी रूम है, इनके साथ वहां बैठेंगे। कमल ने वादा किया हमको चाय पिलाएंगे, कमल साहब के साथ चाय पियेंगे और आखिरी दौर इस कुक स्पीक्स का कमल के साथ इनके ट्रॉफी हाउस। So here we are with Kamal now at his residence. जैसे इन्होंने वादा किया था, चाय पिला रहे हैं हमारे को और पीछे आप देखेंगे इनकी पूरी ट्रॉफीज हैं। तो सबसे पहले तो कमल, बिफोर वी गो इन डिटेल अबाउट योर ट्रॉफीज, टेल अस अबाउट योर एशियन एंड द वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स व्हिच यू हैव गॉट. I think it's 4 apiece. No, it's total 10. Okay. In World Championship is 5 and Asian is 5. 2011 में मैंने वर्ल्ड ब्रोंज जीता स्नूकर में जी. उसके बाद मैं पहले वर्ल्ड का ही बताता हूँ। वर्ल्ड का एक और ब्रोंज मेडल मिला मेरे को टीम स्नूकर में, जिसमें ब्रिजेश दमानी मेरे पार्टनर थे। उसमें आप लोग पाकिस्तान से हारे? उसमें हम लोग हारे थे चाइना से। ओके ओके। उसके बाद हम लोग 2017 में मेरा जो इंडिविजुअल वर्ल्ड सिल्वर मेडल है, वर्ल्ड नंबर 2 6 रेड में, जी जी, वो भी इजिप्ट में ही था। उसके बाद मेरा 2019 में लक्ष्मण रावत पार्टनर था जी. उसमें फिर से टीम स्नूकर ब्रोंज था। ओके. वो म्यांमार में 2019 जो कोविड से पहले। जी जी। और एशिया में मेरे 6 मेडल्स हैं। पहला मेरा 2011 में है एशियन 6 रेड, जो पहला 6 रेड हुआ था जी। अच्छा, उसमें आपको हाँ मिला? एशियन 6 रेड वाह में। वाह, क्या बात, तो क्या बात। उसके बाद 14 में मेरा एशियन स्नूकर था, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल है। 14 में ही एशियन टीम स्नूकर था जी जिसमें मैं कैप्टन था इंडिया का, और पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराया था जी। अच्छा, आप पाकिस्तान गए थे? हाँ, पाकिस्तान में 2 बार। पाकिस्तान में किस जगह गए? कराची। कैसा लगा था पाकिस्तान? अच्छा है, लोग रोड्स बहुत अच्छी हैं। और लोग कैसे थे? लोग अच्छे हैं, मिलनसार हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो पंजाबी है तो बिल्कुल पंजाबी, हम भाषी हैं तो ऐसा कोई, लेकिन हम बताते नहीं थे कि हम इंडियन हैं। अगर हम 1 या 2 बार मार्केट में गए तो बताया नहीं हमने। अच्छा जी ओके जी जी। तो 2014 में वो गोल्ड था। उसके बाद 2016 में एशियन 6 रेड में फिर से ब्रोंज था जी। और आपका 2019 में अपना फिर से ब्रोंज था कतर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से आपके। और एक जो हमारा 2013 में एशियन इंडोर गेम्स हुआ था, जी जी जी, उसमें हमारा सिल्वर मेडल था टीम में। ओके। जो कि ब्रिजेश दमानी, आदित्य मेहता और मैं थे। अच्छा, तो एक्चुअली वो दोनों की वजह से वो मेडल था। चल कर, वो तो नाइस ऑफ यू कि आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। पर बहरहाल मेडल तो मेडल होता है, और एक संयुक्त रूप से मिला तो मैं तो उसको संयुक्त ही मानता हूँ जी। अब जो मैं कह रहा हूँ, लास्ट लैप पे मैं आ रहा हूँ आपके, जिसके लिए मेरा मेन था, जिसके लिए कमल आप काफ़ी वोकल भी रहे। दैट इज़ अ इशू विच इज़ नॉट ओनली पर्टेनिंग टू योर बिलियर्ड्स, टू स्नूकर, इट इज़ एग्जिस्टिंग इन बैडमिंटन, इट इज़ एग्जिस्टिंग इन हॉकी। और मैं हॉकी का इसलिए बता रहा हूँ कि जलालुद्दीन साहब भोपाल के जी जी ओलंपियन हैं जी। मेरी शो पे उन्होंने कस के कोसा था, कस के, मतलब जलाल भाई ने कहीं, ही नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड्स, कि यार एक स्पोर्ट्स अधिकारी, उसको ना तो यही वर्ड्स थे, यानी कि मैं उस चीज़ की कोई बुराई कर रहा हूँ, सब अच्छे हैं, कि उनको ना तो खेल का तजुर्बा, ना उनको खेल का ज्ञान, सबसे बड़ी चीज़ है एक स्पोर्ट्स पर्सन का दिल ही नहीं है उनके पास, तो वो स्पोर्ट्स की तरक्की क्या करेंगे। तो एक सरकार को अगर सब आप लोग प्लेयर्स जुड़ के बैठे कि भैया जिस अधिकारी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो हमारे स्टेट का वो आप बना रहे हो, कम से कम स्पोर्ट्स का नॉलेजेबल तो हो, खेला तो हो,
आई एम नॉट बायस्ड और अगेंस्ट एनीवन, तो एक ऐसा प्रेसिडेंस होना चाहिए। पहली चीज ये आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, फेडरेशंस में क्यों नहीं, आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे, आज आपकी उम्र 40, 42, 43 साल है, 50, 52 के बाद क्या आप स्पोर्ट्स को वापस नहीं दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों आप जैसे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करती सरकार? नहीं, इसमें मेरा कहना तो है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपने बताया कि कोई आईएएस या आईपीएस हैं तो वो होने भी चाहिए, बिकॉज जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आया कहीं भी स्पॉन्सरशिप के लिए, इनका जो बात करने का तरीका और इनका एक्सपीरियंस काम आता है। बिल्कुल यस, पर कुछ तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड और नहीं, उसमें स्पोर्ट्समैन हैं। और दूसरा, अभी जो आपको भी पता है कि जो नई फेडरेशन पॉलिसीज आई हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया कि 25% जो है स्पोर्ट्समैन को लेना जरूरी है। तो एक वो अभी प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी सारी फेडरेशन ने कर भी लिया है उसको इम्प्लीमेंट। तो ये एक आपकी बात भी बिल्कुल है, कई जगह पे स्पोर्ट्समैन भी आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हो कि स्पोर्ट्स अगले स्पोर्ट्समैन का दिल या उसकी एग्जैक्ट ज़रूरतें वही समझ सकते हैं। जैसे आप मेरा एक पहलू मानते हैं, मैं आपका पहलू मानता हूं कि एक सिविल सर्वेंट को ही इंचार्ज होना चाहिए, क्योंकि वो जिस दबंगी से और जिस अनुशासन से कंट्रोल करेगा एक नॉर्मल सिविलियन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सो इट हैज टू बी अ सिविल सर्वेंट। आई एम सेइंग 100% बी एड आईपीएस और आईएएस, बट रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, let him have some sort of a sports background. That is it, nothing else. Yeah. तो I agree. No, few of them, see, ये तो और अब तो जो जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं रेलवेज में हूँ जी। रेलवेज में जो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, जो हमारा मेन पेरेंट बॉडी है स्पोर्ट्स की, उसमें सारे स्पोर्ट्समैन हैं जी। उसमें मुझे नहीं लगता, मतलब 100 में से 99% स्पोर्ट्समैन है, एक दो जो हैं वो नहीं है। और वो हमारे क्योंकि स्पोर्ट्समैन के साथ ही ऑफिस में हैं, तो वो भी स्पोर्ट्स में इतनी बात करते हैं कि हमें खुशी होती है। जैसे हमारे आनंद कुमार जी हैं, रमोला जी हैं, और प्रवीण कुमार जी हैं। ये प्रवीण कुमार जी हॉकी बैकग्राउंड से हैं, रमोला जी एथलेटिक बैकग्राउंड से। तो लेकिन ये इतने सपोर्टिव हैं कि वो कहते हैं ना, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी, तो क्योंकि दिल है स्पोर्ट्समैन। देखिए साहब, ये दिल की बात है। आप स्पोर्ट्समैन है, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं, मैं आपके जो दर्द को समझूंगा, एक नॉन प्लेयर कभी नहीं समझ सकता। इसमें कोई आर्गुमेंट की बात ही नहीं है। और ये तो इस चीजों में अटल बिल्कुल कि ये होना ही चाहिए। चलिए अच्छा, ये तो बताइए कमल, आप रेलवेज में अभी कार्य कर रहे हैं, how far is railway supportive to the sports people? Railways is the highest supporter of the game in India. Great, yeah, great. और हमारे जैसे अभी नेशनल हुआ तो हमारे टोटल 24 प्लेयर्स हमारे खेले इंडियन रेलवेज के। और फॉर्चुनेटली आई एम हैप्पी कि मुझे रेलवे ने कोचशिप भी दी हुई है। क्या बात। कोच एंड प्लेयर फॉर इंडियन रेलवेज ऑल्सो। क्या बात। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरा, रेलवे का मेडल्स पे प्रमोशन है, मेडल्स पे कैश अवार्ड है, इंक्रीमेंट्स भी होंगे। हाँ, और एक अभी नई इंक्रीमेंट्स भी हैं, बहुत सारे मतलब पॉलिसीज है। और अभी आगे स्पोर्ट्स केडर भी बन रहा है इंडियन रेलवेज का, इट इज अंडर प्रोसेस, मुझे सर ने बताया। तो इंडियन रेलवेज इज डूइंग इनॉर्मस इन स्पोर्ट्स, एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट. These are those public sector undertakings which are in profit, and if they give back to the country by way of appointing sports people. जैसे अपन जिक्र कर रहे थे, मैं अब नीचे नहीं जिक्र कर पाया था जब कमल के साथ इनके एकेडमी में थे, कि गीत सेठी और प्रकाश पादुकोण ने एक ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट बनाया। देखिए कितनी बढ़िया चीज बनाई, एक फाउंडेशन बनाया, द नेम इज ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। अब उसमें दे आर जस्ट सपोर्टिंग स्पोर्ट्स पीपल, सच अ फैंटास्टिक थिंग है। नो, उसमें एक आप जो मुझे पता है चीज़ कि जो वो स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, उन्होंने अपने पुराने जो चीफ एडिटर्स हैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से उनको लिया हुआ है। वो पहले एक स्पोर्ट्समैन की इंक्वायरी करते हैं कि ये कोई गलत काम तो नहीं करता और कोई गलत आदतों में तो नहीं है, और ये जो हमारा स्पोर्ट्स का पैसा है ये सही जगह लगाएगा। उनको लेते हैं चुपचाप और उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फंड रेजर कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको फंड्स करके स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड या इंडिया में स्पेशलाइज्ड कोच विद स्पेशलाइज्ड डाइट, और तभी ये गगन नारंग जी, टिंकू लुंका, ये सब कितनी बड़ी चीज है। और यहीं से मेडल आ रहे हैं। और ये देखिए कमल, साइलेंट ऑपरेटर्स हैं, मैंने इनकी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी या कभी इन्होंने शूशाबाजी करी हो, कुछ नहीं। चुपचाप गगन नारंग दे दिया, चुपचाप दूसरा खिलाड़ी दे दिया, एंड दे आर डूइंग देयर, एंड बोथ आर लेजेंड्स। आई मीन प्रकाश पादुकोण द फर्स्ट एवर मैन इन इंडिया टू विन द ऑल इंग्लैंड, एंड गीत सेठी का तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही काफी है। तो ग्रेट चीज है। अब द लास्ट क्वेश्चन साहब आपके साथ वो ये है कि स्पोर्ट्स, ये तो आपने बात कर ली कि जो स्पोर्ट्स जो बॉडीज होती हैं उसमें सरकार का भी आ गया कि 25% स्पोर्ट्स वो होना चाहिए, खिलाड़ी होने चाहिए। अभी जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस चल रही हैं,
मध्य प्रदेश में या इंडिया में, which are governed by non-players. Do you feel that they should be governed by players? Some sort of ordinance should come, like the Cricket Board of India. It's a very profitable thing. It's totally governed by ex-players. उनका उन्होंने स्पेसिफिकेशन कर दिया, सब इतने टेस्ट मैच खेलो तो आप सेलेक्टर बनोगे, इतने वनडे खेले तो आप ये बनोगे, जोनल बनोगे. क्या ये एक प्रक्रिया दूसरे स्पोर्ट्स में आनी चाहिए? नहीं, वो आ ही गई है. मैंने जैसे आपको बोला ना कि 25% जब जो करंट स्पोर्ट्समैन उनको लेने हैं जी, वो आ चुका है 3.2 अध्यक्ष नॉन स्पोर्ट्समैन बन गया. अब बाकी वो देखिए सर, अभी तो ये थोड़ा बहुत चेंज होना बाकी है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है. मतलब एक पहल हुई है. पहल हुई है और ये 2011-12 की पहल है. क्या बात, क्या बात. तो ये बहुत बढ़िया पहल है. और दूसरा, सब लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े, क्योंकि अब 2010 के बाद जो अपना कॉमनवेल्थ हुए थे दिल्ली में, 103 मेडल इंडिया ने जीते थे, वहाँ से पेरेंट्स का रुझान बढ़ा है कि बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजें. पहले तो वो जो आप कहावत सबको ही पता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, वो चेंज हो गई है. और अभी ओलंपिक के जो पिछले 3 बार 2020 में तो कमाल कर दिया. पीछे तीन ओलंपिक में जितने मेडल्स आए और जो कवरेज दूरदर्शन ने दिया है, जी हाँ, जी हाँ. और बाकी चैनल्स ने दिया है, उसकी वजह से जो आम आदमी है वो भी स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है. लाजवाब कवरेज. दूरदर्शन तो मेरे हिसाब से कमल वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टीवी चैनल है साहब. जितना अच्छा नहीं, जितना रिमोट और जितना चांस ये यंगस्टर्स को देती है दूरदर्शन. मैं भी एक कमेंटेटर रहा दूरदर्शन के माध्यम से रहा, और जितना इनका वाइड स्प्रेड एजेंडा है इंडिया में, वाकई में इट्स तारीफ काबिल चीज़. जैसा अभी ओलंपिक्स की आप तारीफ कर रहे हैं, तो चलिए, ये एक आपने बताया कि 25% सरकार ने अब एक रिजर्वेशन कर दिया है इनके लिए, और वो आप समझते हैं एक ठीक कदम है? ठीक, बहुत बढ़िया. गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो अच्छा ही करेगी. हमारी सोच से ऊपर है उनकी सोच. नहीं, भी आपको सपोर्ट देंगे. अच्छा, दूसरा आपको मुबारकबाद देते चलूं खत्म करने के पहले कि इस नेशनल्स में आपने बहुत ही उम्दा एक ब्रेक बनाया था 136 का. हाँ, थैंक यू सो मच. 2 ब्रेक बनाए, एक 136 बनाया और 111 बनाया. अरे क्या बात है सर. तो ये 136 का हाईएस्ट ब्रेक था टूर्नामेंट का? हाँ, मोर ओवर था, बट जो भी उन्होंने वो एक अलग कहानी है. और मेरा सेकंड हाईएस्ट. आप कहानी तो एक भी नहीं सुना रहे. एक कहानी तो सुनाइए हम लोग. क्यों नहीं सुनाते? जी, मेरे माध्यम से सुनाइए. मैं भी तो एक खिलाड़ी रहा हूँ. 136 का आपका ब्रेक था, तो क्या उसमें कुछ रिकग्नाइजेशन या अवार्ड आपको मिला था? मिला? हाँ, नहीं, वो नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? आई डोंट नो. मेरा काम है खेलना, मैंने खेला. क्या देखिए, इन्हीं शब्दों से अपन समाप्त करते हैं. कितना खूबसूरत बोला कमल ने. मेरा काम है खेलना, मैं तो खेलूंगा. अवार्ड मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा. तो कमल, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने वक्त दिया, संडे का टाइम दिया. थैंक यू सो मच. वी हैड अ लवली इंटरव्यू. और मैंने जैसे बोला, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. जब आप जाएंगे खेलने के लिए, बहुत अच्छा करके आए. हमारी भोपालियों की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, भारत की तरफ से आपको शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.